Hello everyone, good morning. Welcome you in the statistics topic. Whereas we have started understanding about median, but before we understand median, the very important concept of cumulative frequency that what we understood yesterday. Yesterday I gave you very less work, but today it would be quite big, quite more. So let us understand one by one. Again the same concept of CF table first. So what we did yesterday, we found a CF table of this particular table, right? Of this table we found a CF table, cumulative frequency table. वो कैसे किया हमने? तो here it was something as less than, इसका कुछ हेडिंग नहीं होता है, लेस दैन द अपर लिमिट मतलब लार्जर वैल्यू, लेस दैन द लार्जर वैल्यू. तो 20, लेस दैन 40, लेस दैन 60, लेस दैन 80, लेस दैन 100 and less than 120 we did, right? And here we wrote CF, which was the first remains same, and after that we go on adding the next term to the previous term. So this 9 plus 7 is 16, 16 plus 2 is 18, 18 plus 12 is 20, 30, 30 plus 9 is 39, and 39 plus 5 is 44, right? So this is how we did the CF table. If I want to find a more than CF table for the same concept, same question, then I would go for more than the lower limit, that means smaller value. Remember that more than 0, more than 20, more than 40, more than 60, more than 80, and more than 100. And here we'll write CF, and what remains same is nothing but the last one remains same. Okay, so last one I'll just keep it same, and other things I'll go on adding the consecutive terms. So I get 5 here, 5 plus 9, 14 plus 12, 26, right? 26 plus 2, 28, 28 plus 9 is 37, 37 plus 7 is 44, and that's your answer. Let me tell you, this value 44, if I add total summation Fi, is also equals to 44. If I add all these terms, it also going to be equal to 44, which is here and here. Okay, so addition of all that is of course going to be the addition of all the frequencies. So this is what we have seen in the previous class. So now in this class what we are going to do, we are going to do exactly the reverse. That means if we have the CF table and now we are going to convert it into class, that means the FDT, frequency distribution table. So this is exactly opposite process we are going to follow. Let's understand how to do that. So prepare the frequency distribution table for the CF table. तो CF table is given and you have to find a normal table. ठीक है ना? तो उससे पहले सबसे पहले क्या लिखना होता है? क्लास लिखना होता है. आपको पता है लेस दैन द क्या होता है? अपर लिमिट. तो ये होना चाहिए लार्जर वैल्यू, अपर लिमिट होना चाहिए 10. तो ये 10 यहाँ पे होता है नॉर्मली. तो क्या वॉट टू 10 हो सकता है, 5 टू 10 हो सकता है, 0 टू 10 हो सकता है. दैट डिपेंड ऑन द नेक्स्ट वैल्यू. 20 है, इसमें गैप कितना है? 10 का है, तो ये 0 टू 10 ही होगा. ये 15 होता तो 5 टू 10 होता, राइट? सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. द हाइट वुड रिमेन सेम. तो ये रहा हम क्लास. तो ये 20 तो 10 टू 20, तो अभी तो लिख सकते हैं आप लोग 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. Make sure that each value 20 is the larger in this, upper limit in this. Okay? So that we need to understand. And then what remains same in less than type? The first remains same, so that I'll keep it as it is. And then consecutive subtraction. 9 minus 5, 4. Consecutive subtraction. 17 minus 9 is 8. 29 minus 17 is 12. 45 minus 29 is 16, maybe. Yes, 60 minus 45, consecutive subtraction. Okay, so 60 minus 45 is 15, and so on. So this is the way how we'll get the frequencies. So what we understand here, when we have to find CF, we do addition to the previous term, but what remains same is important. Same thing when it comes to
converting into frequency distribution table, we go for consecutive subtraction between the two terms, but first term remains same. This is for less than. When it comes to more than, let's understand that this is more than. So when we have to go for the class, so this will be the classes and here it is fi. So this is supposed to be the lower limit, so 42 something, तो 42 of course surely it is going to be 50, ये चला गया होगा अभी तक. So this is class and fi, this is 40 to 50, then 50 to 60. now that you have to understand, more than जब होता है तो ये होता है lower limit, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, and of course 100 to 110, the next one. ठीक है ना. fi, if I have to go for fi, then last remains same in terms of more than, the last one remains same, and then consecutive subtraction, 12 minus 7 here, 18 minus 12 here, this 2 here, है ना. So in this way you will continue your fi. तो रिमेंबर कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन एंड लेस दैन द अपर लिमिट, मोर दैन द लोअर लिमिट, इतना याद रहेगा तो दिस विल बी डन. प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए. प्लीज़ रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही होगा, दैट्स इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज़ ऑफ मीडियन. चलो अभी यहाँ से हम शुरू कर देंगे मीडियन को फाइंड करना. देखो हमारे पास सबसे डिफिकल्ट चीज़ है इन दिस स्टैटिस्टिक्स इज मीन, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. अभी जो है वो बहुत बहुत इजी है. मीडियन भी इजी है, मोड भी इजी है, वेरी वेरी सिंपल. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट. तो ये इजीली हो जाएगा एंड क्विकली हो जाएगा. अभी आप लोग खुद से ठीक से करेंगे तो 100% ये 2 से 3 दिन में हम लोग इस टॉपिक को अभी खत्म कर देंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग. मीडियन फाइंड करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई हैव टू फाइंड आउट मीडियन. मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला इज. फॉर्मूला ऐसा है, मीडियन इज इक्वल्स टू L plus n/2 minus CF P upon F into H. ओके, ये H जो इंटू है ये सिर्फ इस ब्रैकेट को है, बाकी किसी को नहीं है. अभी ये सब कुछ क्या है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो पहले मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ. ये थोड़ा सा वियर्ड फॉर्मूला लगता है, ठीक है. ठीक है, ओके. चलो देखते हैं करना क्या होता है मीडियन में. सबसे पहले यू नो दैट कि कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें कॉलम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉलम्स को समझ लो. यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे होगा fi और यहाँ पे होगा cf. cf का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें? लेस दैन. तो लेस दैन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे चाहिए. तो क्लास क्या है? 5 to 10, आई एम सॉरी, चला गया फिर से. We have class, frequency and we have CF here. CF कौन सा चाहिए? लेस दैन. ठीक है. क्लास क्या है? 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15 सॉरी, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45, राइट. फ्रीक्वेंसी जो है वैसे लिखते हैं 5, 6, 15, 10, 5, 4 एंड 2 एंड 2. CF चाहिए. कौन सा वाला CF चाहिए? लेस दैन टाइप. अभी आप लोग बोलोगे CF तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? लेस दैन 10, लेस दैन 15. इसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें आई जस्ट नीड, लेट मी टेल यू, आई जस्ट नीड CF ओनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई जस्ट नीड CF ओनली. तो जो भी हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि लेस दैन ये लिखना है, वो लिखना है, वो नहीं लिखना है, बस CF चाहिए. CF कैसे चाहिए? लेस दैन. लेस दैन CF में क्या होता है? फर्स्ट वन रिमेन सेम. तो यहाँ पे 5 सेम रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट वाला इसमें ऐड कर दो, 6 + 5 11. नेक्स्ट वाला इसमें ऐड कर दो. तो ये ऐसे बोलते हैं जिगजैग एडिशन. ये ऐसे है ना, जिगजैग जैसे एडिशन लग रहा है. तो वैसे अभी हमें यहाँ पे करना है. ठीक है. तो 6 + 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. 15 + 11 26 सॉरी 26 + 36 36 + 5 ये ऐड करते जाना है. यहाँ लिखना है
ऐड करते जाना है, वहाँ पे लिखना है 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 2 47, 47 प्लस 2 49। आई होप इट इज़ 49। चलो देखते फिर से करते, 5 सेम 5 11 11 प्लस 15 इज 26 26 10 36 36 प्लस 5 11 41 41 प्लस 4 45 45 प्लस 2 47 एंड 47 प्लस 2 यस 49। यहाँ तक समझ में आ गया। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डू सी एफ। तो यहाँ पे हम लोग समेशन एफ आई जो लिखते थे इसको अभी यहाँ पे बोलेंगे एन, एंड हमें पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही होती है, तो आई डोंट हैव टू ऐड, इवन इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट एंड चेक इट। तो इसको बोलते हैं एन। एन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग एन बोलते हैं। मतलब समेशन एफ आई ही एन होता है, ये अभी इसमें समझ लो, ठीक है ना। हम 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एन बाई 2 फाइंड करते हैं, सेकेंड मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, एंड थर्ड स्टेप में डायरेक्टली मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। एन बाई 2 मतलब 49 बाई 2, 49 बाई 2 तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8.5 24.5, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 24.5। एन बाई 2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाफ क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे सेंट्रल वैल्यू चाहिए। देखो मीडियन क्या होता है, सेंटर का नंबर होता है, ये वाला होता है सेंटर नंबर। तो इसका अगर मैं एन बाई 2 फाइंड करूँगा तो मुझे सेंटर नंबर मिलने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ एन बाई 2 फाइंड किया। तो एन बाई 2 सी एफ में कहाँ पे आता है ये देखते हैं। मतलब 24.5 से फर्स्ट लार्ज वैल्यू सी एफ में कहाँ पे आती है वो देखेंगे। फर्स्ट लार्ज वैल्यू 24.5 से, मतलब एन बाई 2 से फर्स्ट लार्ज वैल्यू इन सी एफ यू हैव टू सर्च। तो 5 11 26 ये रहा मेरी फर्स्ट लार्ज वैल्यू, इसको मार्क करो। मार्क किया। इस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, 15 to 20, इस क्लास को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। फर्स्ट लार्ज वैल्यू देन n by 2 विल गिव अस मीडियन क्लास। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट लार्ज वैल्यू देन n by 2 विल गिव यू मीडियन क्लास। देखो फर्स्ट लार्ज वैल्यू देन n by 2 विल गिव यू मीडियन क्लास, दैट्स इट। अभी आपको बस मीडियन फाइंड करना है, काम खत्म। देखो मीडियन का फॉर्मूला लिखना है L प्लस n by 2 माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू एच। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये रहा L 15 प्लस n बाई 2, तो वो तो मैंने पहले ही फाइंड करके रखा है 24.5, माइनस सी एफ पी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैन द मीडियन क्लास। पी क्या स्टैंड करता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रीवियस क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास मतलब 11 माइनस 11 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास मतलब 15 इंटू एच क्लास हाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस, ओह शिट, गया गया गया। चलो मैं इसको पॉज करने की कोशिश वो भी नहीं कर सकता अभी, ठीक है चलो। एनीवे फिर से करेंगे, नो ऑप्शन, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। कितनी बार करूँ मैं एक ही क्वेश्चन, चलो ठीक है ये क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं पता नहीं। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्लास चाहिए होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लास चाहिए होता है ना। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्लास मेरे पास है यहाँ पे, क्लास यहाँ पे आ गया क्लास, ये होगा फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे मुझे ये सी एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्या है यहाँ पे 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 है, 170 to 180 है, 180 to 190 है एंड 190 to 200 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी है 625, then we have 48, then we have 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। सी एफ अभी चाहिए। देखो सी एफ क्या करना होता है, लेस देन टाइप सी एफ चाहिए मुझे, लेस देन टाइप, ठीक है ना। लेस देन टाइप में क्या होता है, ये रिमेन सेम, तो 6 यहाँ पर रहेगा, इसका एडिशन करो 31, 31 प्लस दिस वन इज 79, 79 प्लस 72, बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, तो कर देते कोई बात नहीं। 1 एंड 15 151 आई थिंक, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 17 14 15 करेक्ट है। 151 प्लस 116, तो ये हो जाएगा 7
267, right? Plus 60 is 327, I think so, right? Plus 38 is 563. Plus 22 is 387. Plus 3 is 390. ठीक है, तो यहाँ पे n जो आएगा इसका एडिशन ये भी क्या आएगा 390. समेशन एफ आई कोई हम लोग क्या बोलेंगे n बोलेंगे. ठीक है, तो 3 स्टेप में हम लोग मीडियन को फाइंड करते हैं. पहला वाला स्टेप n/2, याद रखो स्टेप को. दूसरा वाला स्टेप मीडियन क्लास. एंड थर्ड वाला स्टेप क्या है, डायरेक्टली मीडियन. फाइन. n/2 मतलब 390/2. 390/2 कितना था, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 195. अभी 195 जो है 195, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 195 n/2 है, तो 195 से फर्स्ट लार्ज वैल्यू इन CF यू हैव टू फाइंड फर्स्ट लार्जर वैल्यू इन CF. तो कहाँ पे है CF में फर्स्ट लार्ज वैल्यू देन 95? ये रही, ये वैल्यू इधर. तो ये इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो और ये मिलेगा आपको मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास क्या है, 150 to 160 है. तो मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस, ये याद करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दिस, CFP/F into H. ये सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी. L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो 150 हो गया, प्लस n/2 तो वो 195 हो गया, माइनस CFP मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. तो ये रहा वो, तो 151. ये सभी पर्टिकुलरली वैल्यू लेने हैं और कुछ नहीं. अपॉन F मतलब 116 इंटू H कितना है 10. दैट्स इट. तो वी हैव 150 प्लस, अभी ये होगा 4, 9 - 5 is 4 and 1, नहीं 0 है ना, 1 का 1 0, 44 राइट, डिवाइडेड बाय 116 इंटू 10. तो आपको पता ही है कि हमें करना कैसा है इसको डिवीजन, प्लस इसको क्या करना है 440 डिवाइडेड बाय 116, इसको सेपरेटली डिवाइड करना है. तो कर सकते हैं हम लोग, इसको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. तो हमें थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ. देखो डायरेक्टली भी मैं 116 से 440 को डिवाइड कर सकता हूँ. कैसे, 116 ऑलमोस्ट 2 ज़ा 3 ज़ा भी हो सकता है, तो 116 इंटू 3, तो ये रफ में आपको करना पड़ता है. तो 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 1 ज़ा 3 48. ठीक है, 4 ज़ा करके देखेंगे, तो 116 इंटू 4, तो 4 6 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 1 ज़ा 4. तो देखो ये तो नहीं है, 3 4 8, तो 2 ज़ा 3 ज़ा 348. ठीक है, तो ये रहेगा 2 1 कैरी 9 एंड 1 कैरी 0, तो ऊपर से 0 लिया, 920. तो 116 इंटू 8 तक जा सकता है पॉसिबली, या फिर 9 से भी जा सकता है. ठीक है ना, तो 8 6 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी एंड 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, 928. तो ये 8 ज़ा भी नहीं है, 7 जाएगा, तो पॉइंट होगा राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि पॉइंट 3.7 समथिंग होगा, और कुछ तो होगा. तो ये होगा 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 1 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 7 8. ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखो, ये अगेन 8 2 में 1 एंड 1 8 कैसे आ गया, 108 सॉरी. ठीक है, 108. अगेन ऊपर से 0 लेना पड़ेगा हमें, ऊपर से 0, तो ये इस टाइम 9 ज़ा हो सकता है. ठीक है, तो 9 ज़ा, या फिर इवन दिस इज़ ओके, 8 ज़ा भी ओके है. तो ठीक है, हो गया, 2 डेसिमल तक आंसर आ गया मेरा. तो व्हाट इज़ माई आंसर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाट इज़ माई आंसर हियर, माई आंसर हियर इज़, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ 150 प्लस इसका जो डिवीजन आ रहा है ये कितना आ रहा है 3.79. तो माई टोटल आंसर इज़
153.79। मीडियन है तो क्लास का जो यूनिट होगा वो इसको होगा, क्लास का जो यूनिट। क्लास में क्या है, मुझे लगता है कुछ तो मार्क्स वगैरह है, तो ये आंसर देखते हैं, चेक करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। देखो 153.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही आंसर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? रुपीज़ है तो आंसर भी क्या होगा, ये जो आंसर है ये क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीडियन का रुपीज़ ही होगा। रुपीज़ 153.8 इज़ द आंसर। क्लियर? तो रिमेंबर इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो आज का दिन पूरा किसके लिए देना है आपको, मीडियन के लिए देना है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो फॉर द मीडियन, बेस्ड ऑन मीडियन। मीडियन बिकम्स बिट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस और टू अंडरस्टैंड, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइक मीन जैसा नहीं है ये। ठीक है, तो कंप्लीट करो एंड फिनिश ऑफ। ठीक है, टू डेट सेल्फ। तो आज आपका टारगेट क्या है, मीडियन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। हॅलो, हां हां, आलो आलो, एकच मिनिट आलो. अरे ते ह्याचं काम चालू होतं, एक 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 5 मिनिट द्या, अजून मी आलो, येतो येतो लाईनवरती. तू जॉईन झालास?